یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے ایسے ایسے راز دفن ہیں جو آج بھی انسانوں کو حیران کر دیتے ہیں. اسے عجائبات کا گھر بھی کہا جاتا ہے جو اپنی جادوئی سرزمین اور پر اسرار زندہ تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اور یہاں کا حسن بھی توبہ توبہ، مطلب دیکھنے والا پہلی نظر میں دیوانہ. جی ہاں میری جان، آج ہم بات کر رہے ہیں مصر کی، جہاں پر بنائے جانے والے اہرام، فرعونوں کی مومیاں، ہزاروں سال پرانی تاریخ اور عجائبات ہر انسان کو حیران کر دینے والی تاریخ رکھتی ہے. آج ہم اس ملک کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات، مصر میں لوگوں کی زندگی، یہاں پر موجود ولیوں کے مزار، یہاں کا حسن اور نائٹ لائف. توبہ توبہ. تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اپنے اس شاندار سفر کو شروع کرتے ہیں. مصر، جس کا آفیشل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور عربی میں عرب جمہوریہ مصر کہا جاتا ہے، ایک بین البری اعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی اور ایشیا کے جنوب مغربی حصے پر واقع ہے. اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہیں. شمال مشرق کی جانب خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے. محترم ناظرین، مصر کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 10,70,85,000 نفوس پر مشتمل ہے. یہاں کی سرکاری زبان مصری عربی ہے اور یہ ایک مسلمان ملک ہے. مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ افریقہ میں آبادی کے لحاظ سے نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے. موجودہ مصر کے لوگ انتہائی مہمان نواز، خوش اخلاق اور عزت کرنے والے ہوتے ہیں. مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے جو اس کا دارالحکومت بھی ہے. یہ شہر قدیم تاریخ، پرانی ثقافت اور جدید طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے. قاہرہ کی آبادی پورے ملک کی تقریباً 20% ہے اور یہ دنیا کے مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. یہاں آپ کو ہر وقت ہجوم، زندگی، روشنی اور دنیا بھر سے آئے ٹورسٹ نظر آئیں گے. قاہرہ میں شام کے وقت لوگ بچوں سمیت گھومنے پھرنے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے کرتے ہیں. بہترین ریسٹورنٹس، گیم کلب، شیشہ کلب اور ہر طرح کی تفریح اس شہر میں موجود ہے. پورے مصر سے لوگ کاروبار کے سلسلے میں قاہرہ کا رخ کرتے ہیں. قاہرہ میں شام کے وقت فیملیز جوک در جوک دریائے نیل کے کنارے بیٹھی نظر آتی ہیں، جہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں اور مختلف کھانے کھاتے ہیں. یہ شہر جتنا دن کے وقت مصروف ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رات کے وقت چہل پہل کا منظر پیش کرتا ہے. یہاں کی روشنیاں اور زندگی انسان کا دل خوش کر دیتی ہیں. اگر ہم قاہرہ کے قدیم علاقوں پر نظر ڈالیں تو ہر مسلمان اس شہر کے علمی اور روحانی ورثے کو دیکھ کر خوش نصیب محسوس کرتا ہے. یہاں کئی مسلم مقدس ہستیاں اور ان کے مزارات موجود ہیں. اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار بھی موجود ہے. اسی طرح یہاں امام شافعی کا مزار مبارک بھی واقع ہے. قاہرہ کی مسجد حسینی بھی ایک روحانی مقام ہے. مصریوں کے مطابق یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دفن ہے. اگرچہ پوری دنیا کے زیادہ تر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصری قوم کا ماننا ہے کہ سر مبارک قاہرہ میں موجود ہے. اب ان رازوں کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے. محترم ناظرین، مصر کا ایک چھوٹا مگر مشہور شہر شرم الشیخ بھی ہے. اس شہر کی آبادی تقریباً 75,000 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ صرف 45 مربع کلومیٹر ہے. یہ شہر سمندر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بحر احمر کے کنارے واقع ہے. شرم الشیخ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. یہ چھوٹا مگر خوبصورت شہر اپنے دلکش مناظر، بہترین ریسٹورنٹس، ڈانس بار، شیشہ کلب اور تفریحی جگہوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. محترم ناظرین، مشہور زمانہ ملکہ کلیوپیٹرا کو کون نہیں جانتا. اس فرعونی ملکہ کا حسن آج بھی پوری دنیا میں سر چڑھ کر بولتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے حسن اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت کئی سلطنتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. ناظرین، جو زخمی پٹیاں آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قدیم زمانے میں مصریوں نے ایجاد کی تھی. قدیم مصری لوگ جسم پر بالوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، صرف خواتین ہی سر کے بال رکھتی تھی. قدیم مصری لوگ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے. اور اگر بات کریں احرام مصر کی، مصر کا سب سے بڑا احرام خوفو کا احرام ہے. یہ احرام غزہ میں موجود ہے. خوفو کا احرام دنیا کا پہلا عجوبہ عالم. اس کی اونچائی 138 میٹر ہے اور اسے بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا. یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو 139 میٹر اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا. محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا احرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا تھا. مصر میں چھوٹے بڑے احرام ملا کر سینکڑوں کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور احرام صرف یہ 3 ہے. سب سے بڑا احرام جیزہ ہے جو فرعون خوفو یا خفت کے لیے بنایا گیا تھا. اس دور کے بہت سے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کی پیروی بھی کی جاتی تھی. یہ لوگ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ انتہائی ذہین ریاضی دان بھی تھے. احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھر اٹھانے کا کام نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، ان کا مقام، زاویہ، کٹائی، ہر چیز کا مکمل خیال رکھا گیا. اگر کسی شخص کو احرام بنانے کا اصل سہرا جاتا ہے تو وہ پہلے احرام کے ڈیزائنر امہوتپ ہیں. وہ ایک ہنرمند معمار ہونے کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے. وہ ایک پادری اور معالج بھی تھے. قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا گیا. 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے انداز سے دوبارہ پیش کیا اور فلم دی ممی میں انہیں ولن کے طور پر دکھایا. خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتی ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد اونچائی کی طرف تقریباً 250 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. پھر وہ جگہ آتی ہے جہاں فرعون کی ممی یعنی کوفو کی ممی رکھی گئی تھی. معزز دوستوں، ان احراموں میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ ان کی لاشوں کو بھی محفوظ کر دیا جاتا تھا. بعض جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فرعون کے خصوصی خدمتگاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی مار دیا جاتا تھا. ان کا ماننا تھا کہ ان کے دیوتا دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. مصری کرنسی کو مصری پاؤنڈ کہا جاتا ہے. ایک مصری پاؤنڈ تقریباً پاکستانی 10 روپے اور انڈین 3 روپے کے برابر ہے. مصر کا کالنگ کوڈ +VCs ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .eg ہے. مصر کے موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی ہیں، جن کی پیدائش 19 نومبر 1954 کو ہوئی. وہ 2014 سے آج تک مسلسل مصر کے صدر ہیں. محترم ناظرین، وقت کے لحاظ سے مصر پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے. مصر میں بہنے والا دریا دریائے نیل دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے. اس دریا کا پانی مشرقی افریقہ سے آتا ہے اور پورے مصر کو سیراب کرتا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کو زراعت کی بہترین سہولیات میسر آتی ہیں. مصر کی معیشت کا دار و مدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور خام
पाम तेल की एक्सपोर्ट पर है। मिस्र में हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं जो फिरौन के बनाए गए उन अहरामों और मिस्र की कदीम सकाफत को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मिस्र के मशहूर होने की बड़ी वजह यही अहराम है और उन्हीं की बदौलत मुल्क को बड़ी माशी आमदन हासिल होती है। मिस्र के लोगों की रंगत सफेद यल्च है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। मिस्री लड़कियां इतनी खूबसूरत मानी जाती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। लंबी कंधों तक लंबे बाल, सल्लम स्मार्ट फिगर और खुमार भरी आंखें उनकी शख्सियत को दिलकश बनाती हैं। मिस्र में रात की जिंदगी पूरे जोशो खरोश के साथ गुजरती है। अगरचे मिस्र में शराब पर पाबंदी है, फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मार्केट में फरोख्त होती है। इस वजह से लोग शीशा क्लब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नौजवान लड़कियां शीशा क्लब में जाकर शीशा पीती हैं और रक्स भी करती हैं। मिस्री रक्स पूरे अरब दुनिया में जाना पहचाना जाता है। मिस्र का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। आप हुकूमती इजाजत के बगैर बहुत सी सरगर्मियां नहीं कर सकते। मिस्र की सरजमीन पर इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में हकीकी मानों में मकबूल हो चुका था और फिर बहुत तेजी से फैलता चला गया। आज मुल्क की 90% आबादी मुसलमान है। मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत बरतानिया का भी कब्जा रहा है। मिस्र का सालाना GDP $899 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की फी का आमदनी $17,714 है। मिस्र में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है। पूरे मिस्र में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। शहर में मेट्रो सिस्टम भी चलता है और पूरे मुल्क में ट्रेन का जबरदस्त निजाम मौजूद है जो दुनिया के बेहतरीन ट्रेन सिस्टम्स में शुमार होता है। मिस्री लोग काम की गर्ज से पूरी दुनिया में सफर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, फिरौनों की मुमय्यज़ को तो ज़माना कदीम के लोग हुनूद करते ही थे, लेकिन उस दौर के एक बहुत बड़े मगरमच्छ को भी हुनूद करके रखा गया था जो बाद में दरियाफ्त हुआ। इससे साबित होता है कि फिरौन सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा जानवरों को भी मरने के बाद हुनूद कर देते थे। मिस्र के 90% लोग मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि बाकी आबादी में क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी मुल्क की शरह खानदगी 70% है और पढ़े लिखे लोगों को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। मिस्र में इंसानों की औसत उम्र 70 से 80 साल है। मिस्र का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा दीगर खेल भी खेले जाते हैं। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी मिस्री एम्बेसी से डायरेक्ट वीजा हासिल कर सकता है या किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के जरिए वीजा ले सकता है। पाकिस्तान और मिस्र के अच्छे ताल्लुकात हैं। मिस्र दुनिया में खजूरें पैदा करने और एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दरियाए नील की बदौलत मिस्र में बहुत सब्जियां और फल होते हैं और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मिस्र की इंजीर और स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है। मिस्र के लोगों की बड़ी अक्सरियत दरियाए नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दरियाए नील के नजदीक यही इलाके काश्तकारी के मराकज़ हैं। सहराए सहारा के बड़े इलाके मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल होने की वजह से बहुत कम आबाद है। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद है और ज्यादातर दरियाए नील के आसपास रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जदीद मिस्र का आगाज 1922 से होता है, जब मिस्र ने बादशाहत की सूरत में बरतानवी सल्तनत से आजादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को जमहूरिया करार दिया और 1958 में उसने शाम के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाई, जो 1961 में तहलील हो गई। 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में मिस्र ने समाजी व मजहबी कशमकश और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मामलात पर तनाज़ात रहे। 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत की और बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा की पट्टी से दस्तबरदार होकर इसराइल को तस्लीम किया। बाद 2011 में मिस्री इनकलाब के नतीजे में हसनी मुबारक का तख्ता उलट दिया गया। मुल्क में सियासी बेयकीनी रही, जो बाद में 2014 की हुकूमत के बाद कदरे बेहतर हुई। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी मिस्र के बारे में बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें? तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा।
तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा, तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा, जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। जिस पर साबिर खान ने कहा, आली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा, जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा, बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बताया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो।